سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں نواں شہر ڈیرہ اڈا روڈ پر کراؤن فیلئر کا معاملہ۔ کراؤن فیلئر کی مرمت کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان میں نواں شہر ڈیرہ اڈا روڈ پر کراؤن فیلئر کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ کراؤن فیلئر کی مرمت کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ملتان میں نواں شہر ڈیرہ اڈا روڈ پر کراؤن فیلئر کا معاملہ ہے۔ شہر اولیا کی سڑکوں پر گڑھے پڑنے کا سلسلہ رک نہ پایا۔ مختلف علاقوں کی سڑکوں پر بارش کے بعد گڑھے پڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نواں شہر چوک سے ڈیرہ اڈا چوک کے درمیان سڑک پر کراؤن فیلئر پڑنے سے روڈ پر گڑھا پڑ گیا۔ عارضی ریلیف کے لیے ڈسپوزل اسٹیشن ڈویژن نے پمپ آپریشنل کر دیا۔ ہر جگہ بند رہتے ہیں اور پھر بسوں وغیرہ کا بھی ہوتا ہے کہ بس کے اسٹاپ سے اسکپ ہونے لگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر دقت آتی ہے جانے وغیرہ۔ دوسری جانب کراؤن فیلئر کی مرمت کے لیے پائپ موقع پر پہنچا دیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سیوریج ساؤتھ ڈویژن کی جانب سے رپورٹ ایم ڈی واسا کو پیش کر دی گئی۔ ہم نے جو ہے نا یہاں اپنا جو ہے نا اسے اپنا جو ہے کٹن آف کر کے اپنا جو ہے نا پائپس ہمارے آگے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج رات سے ہم یہاں کام سٹارٹ کر دیں گے۔ یہ مین ہول ٹو مین ہول ہم وایا ہے کوئی 120 سے 130 فٹ کا۔ ایم ڈی واسا نے موقع پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کا حکم جاری کیا۔ واسا حکام کا کہنا تھا کہ 24 انچ قطر کی بوسیدہ سیوریج لائن کی مرمت کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ کیمرمین عظیم ساگر کے ساتھ بلال نیازی، روہی، ملتان۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں رحیم یار خان میں میگا سیوریج لائن بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے جنرل بس اسٹینڈز کی مصروف روڈ پر تیسرا بڑا خطرناک گڑھا بن گیا۔ انتظامیہ نے روڈ عارضی طور پر بلاک کر کے 2 گڑھوں کا مرمتی کام شروع کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں رحیم یار خان میں میگا سیوریج لائن بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے جنرل بس اسٹینڈز کی مصروف روڈ پر تیسرا بڑا خطرناک گڑھا بن گیا۔ انتظامیہ نے روڈ عارضی طور پر بلاک کر کے 2 گڑھوں کا مرمتی کام شروع کر دیا ہے۔ رحیم یار خان میں ضلعی اور میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی بڑی نااہلی اور مجرمانہ غفلت سامنے آ گئی۔ میگا سیوریج لائن بیٹھ جانے سے جنرل بس اسٹینڈ کی مصروف روڈ پر تیسرا گڑھا بن گیا۔ گڑھا 5 فٹ چوڑا اور 25 فٹ گہرا ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گزشتہ 5 سال سے روڈ پر خطرناک گڑھے بنے ہوئے ہیں، جس سے آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ کاروبار بند ہونے اور سیوریج لائن کی بدبو سے زندگی اجیرن ہو گئی۔ انتظامیہ کو تو کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ اگر ہو پکچر بناتے ہیں، پکچر بنا کے چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو ٹھیکہ دے رہے ہیں، کوئی ٹھیکہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں۔ عید سر پہ کاروبار یہ دیکھ لیں، ہماری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں روڈ کے اوپر، یہ ساری ٹھیک ہے نا، کدھر جائیں ہم؟ پہلے بھی مشکلات تھی، وہ بھی یہ گڑھا ہو گیا، اس سے 2-3 مہینے پہلے جو ہے وہ 3 گڈھے میں گر گئے تھے بچے، وہ بھی چلا ہے، ابھی ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ سڑک کی بندے سے علاقہ میں کہتے ہیں کہ انتظامیہ سست روی سے کام کر رہی ہے۔ 3-4 دن سے لگے ہوئے ہیں یہ اپنی دکان خالی کرنے کے لیے۔ ہمیں بس کہہ گئے ہیں کہ آپ نے یہ دکان خالی کرنی کریں، نہیں تو ہم آپ کا سامان باہر پھینک دیں گے، دھمکی دے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں ابھی تک۔ ہم تو خالی کر رہے ہیں اپنی دکان، لیکن کام کریں تو پھر پتہ چلے نا، کام ان کے کرنا نہیں ہے، بس عوام کو پریشانی کرنی ہے۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ گڑھا بند کر کے سڑک کو فوری طور پر مرمت کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات کچھ کم ہو سکیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ خانپور کے شہری علاقہ جٹکی بستی میں سڑکیں گلی محلے سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خانپور سے، جہاں پر شہری علاقہ جٹکی بستی میں سڑکیں گلی محلے سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ خانپور کے شہری علاقہ جٹکی بستی کی سیوریج لائن ناکارہ ہونے سے سینکڑوں گھروں کو گندے پانی نے گھیر لیا۔ سڑکیں گلی محلے سیوریج کے پانی سے بھر گئے۔ اہل علاقہ سیوریج کے گندے پانی سے گزرنے پر مجبور۔ سیوریج کے جمع گندے پانی سے علاقہ مقیم مختلف بیماریوں کے شکار میں مبتلا ہونے لگے۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ میونسپل کمیٹی عملہ، اسسٹنٹ کمشنر سمیت ایم این اے اور ایم پی اے کو بارہا شکایات کی، مگر سیوریج سسٹم بحال نہ ہو سکا۔ تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے پانی کھڑا ہے، لوگ گندے پانی میں سے گزرتے ہیں، بار بار لوگ یعنی کہ جاتے ہیں بلدیہ کے پاس، لیکن یہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بھی یہاں کے متعلقہ حکام ہیں نہ یہاں پہ آتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں۔ 4-5 سال سے کھڑا ہے سر، جب سے یہ لائن بنی ہے نا چلی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے عسکر شاہ ہے ادھر کا سنٹری انسپیکٹر، اسے بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہماری نہیں سنتا۔ شیخ فیاض بٹ صاحب کے پاس بھی گئے، وہ بھی نہیں سن رہے۔ چودھری ارشد صاحب یہاں سے گزر کے جاتے، وہ بھی نہیں سن رہے۔ گھروں میں پانی، ہم اتنے پریشان ہیں حد سے بھی زیادہ۔ ہمارے گھر کا آس پاس ساتھ بھی دروازے کا آگے بھی پانی، اتنا پانی ہے بہت زیادہ، ہمارے کو نکلنے کو راستہ نہیں ملتا۔ جو اگر خدا نہ کرے کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو لے جانے کے لیے بھی راستہ نہیں ہمیں ہے۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر سہیل، روہی نیوز، خانپور۔
खानेवाल जिला इंतजामी के तरक्याती कामों में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। पहली बारिश ने पोल खोल दिया। 25 लाख मालियत से ताज़ीन व आराइश किया गया। रेलवे अंडरपास पहली बारिश में टूट फूट गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया ने 25 लाख मालियत से रेलवे अंडरपास की तज़ीन व आराइश 2 माह कबल करवाई थी। मंसूबे की तकमील पर सरकारी इंजीनियरिंग औके की रिपोर्ट पर ठेकेदार को रकम अदा कर दी गई, मगर पहली बारिश ने अंडरपास के नाकस मटेरियल का पोल खोल दिया। शहरी हैरान रह गए। 2 माह पहले ये बनाया गया, तो ये आपके सामने ये सूरत हाल है। तो इस पे लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए हैं और जिसके सामने ये खंडात की सूरत में बन रहा है। तो इंतजामिया से उम्मीद है कि इसके बारे में दोबारा आप देखें। अंडरपास पुल के साइड जगह जगह से बैठ गई, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, स्ट्रीट लाइट्स टूट गई, 3 लाख के लगाए गए खजूर के दरख्त सूख गए। शहरी कहते हैं कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले जिम्मेदारों को सजा दी जाए। लाखों रुपए की मालिकत से ये पुल बनाया गया, उस पर इसके काम करवाया गया, लेकिन पहली बारिश ने ये सारा चिट्ठा उनका खोल दिया है। बाकी इसकी लाइट का भी इंतजाम किया था, लाइट भी सिर्फ चंद दिन चली है। उसके बाद यहाँ पौधे भी लगाए थे, वो भी पानी लगा नहीं है, वैसे सूख गए हैं। इंतजामिया नजर नहीं आ रही। हम कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत तरक्याती कामों के लिए खतीर रकम जारी करती है, मगर अफसरान और ठेकेदारों ने मिली भगत से कौमी खजाने को लूटा है। रेलवे अंडरपास पर जगह जगह पड़े ये गड्ढे जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। साबिक DHO महकमा सेहत की रिहाइश गाह खंडर में तब्दील। शहर के वस्त में मौजूद सरकारी इमारत नशइयों की आमाज गाह में तब्दील। शहरी कहते हैं इमारत कई साल से वीरान पड़ी है और रक्षा स्टैंड कायम हो गया है। महकमा सेहत को नोटिस लेना चाहिए। महकमा सेहत ने हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद महकमा सेहत की तारीखी इमारत खंडरात में तब्दील हो गई। साबिक DHO हेल्थ की रिहाइश गाह में नशइयों ने डेरे जमा लिए। शहरियों का कहना है कि रिक्शा माफिया ने भी बिल्डिंग को वीरान पार्क समझकर पार्किंग स्टैंड बना लिया है। महकमा सेहत की तारीखी इमारत गुज़िश्ता 15 साल से भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। नशे करदन सार मार रहा है। 15-20 बंदे होने वालों नशा कर चले ना बार होर नवे आवे ना। वो गवर्नमेंट एक बार बात करे तो कोई दफ्तर बना सकती है या अपने इस्तेमाल ला सकती। शहरियों का कहना है कि कई बार जिला इंतजामिया को दरखास्त दी, मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। दूसरी जानिब महकमा सेहत के तर्जमान का कहना है कि हुकूमत को इस बारे में दरखास्त लिख चुके हैं। मदर एंड चाइल्ड कम्प्लेक्स बनाने के लिए पहले भी बातचीत जारी रही, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कोशिश है कि इमारत पर मदर एंड चाइल्ड कम्प्लेक्स बना दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरियों को फायदा हो। DHO रेजिडेंट्स का ये है कि हमने यहाँ पे काफ़ी अरसे से जो वीरान पड़ी हुई है, यहाँ पे महकमा हेल्थ ने एक MCH सेंटर तजवीज़ किया हुआ है और वो स्कीम पिछले 10 साल से पेंडिंग है। अगर यहाँ पे MCH सेंटर बन जाए तो ये बहुत बड़ा अवामी मसला जो है हमारा हल हो जाएगा। शहरियों ने मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर जिला इंतजामिया महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और तारीखी इमारत को इस्तेमाल में लाया जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर चेक पोस्ट पर ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स सरापा एहतजाज हैं। कस्टम हुकाम की तरफ से ज़बरदस्ती ट्रकों से डीजल निकाले जाने पर ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स ने 2 दिन से कोयटा रोड को बंद करके धरना दे रखा है। कई बार होने वाले मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो सके। आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां पर इलाके सखी सरवर चेक पोस्ट पर ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स सरापा एहतजाज हैं। कस्टम हुकाम की तरफ से ज़बरदस्ती ट्रकों से डीजल निकाले जाने पर ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स ने 2 दिन से कोयटा रोड को बंद करके धरना दे रखा है। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर चेक पोस्ट पर ट्रक ड्राइवरों का धरना जारी। उनका कहना है कि कस्टम हुकाम बलूचिस्तान से आने वाले ट्रकों से जबरदस्ती डीजल निकाल लेते हैं। पुलिस के जरिए जबरदस्ती डीजल निकालने पर ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स ने बैनुस सूबाई शाहरा कोयटा रोड को एहतजाजन बंद करके धरना दे दिया। उन्होंने कस्टम हुकाम के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया। 2 दिन से बंद रोड खुलवाने के लिए कई बार मुज़ाकरात हुए जो कामयाब न हो सके। कोयटे में डीजल जा रहा है, बिल्कुल कोयटे के पर्ची हम लोगों ने बनाया हुआ है, वहाँ से कोई मुश्किलात नहीं। हम आता है तकरीबन 2000 किलोमीटर इधर आगे से हो रहा है, डीजल आ रहा है, इधर ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जबरदस्ती से पैसा मांग रहे हैं। जब डीजल बंद है तो वहाँ पे बंद कर लो। कल से यहाँ पे हम लोग जलील ख्वार हो रहे हैं, होटल में खाना नहीं मिल रहा है, रोड पे दर बदर है। ये 500 लीटर फी गाड़ी पे मांग रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि बलोचिस्तान से जरूरत के मुताबिक अपनी गाड़ियों में डीजल डलवाते हैं। अगर बलोचिस्तान में कोई महकमा ट्रकों को तंग नहीं करता तो पंजाब में क्यों गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है। ये 2 दिन हो गया हमको जलील कर रहा है,
डीजल बहुत महंगा हुआ है, इधर हमको पकड़ा हुआ है, तकरीबन उधर टैंकर खड़ा हुआ है सामने, गाड़ी को खाली करा 800 लीटर डीजल हमने उठाया हुआ है गाड़ी खुराक के लिए। यह अभी हमको परेशान और जलील कर रहा है। पंजाब में अलग हुकूमत है, बलूचिस्तान में अलग है। बलूचिस्तान से हम अपना जान छुड़ाए फिर इधर फंस गया। ये लोग हम लोगों का कोई बात ना मानता है ना, हम लोगों जो भी गाड़ी आ जाए वो डीजल निकालते यार, ऐसा हम लोग बहुत तंग है इन लोगों से। मुजाहिरीन ने कहा कि मुश्किल से ट्रक चलाकर बच्चों की रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर कस्टम हुकाम को तमाम डीजल निकाल दें तो पंजाब से डीजल कैसे खरीदेंगे। 2 बजे से हमें जलील कर रहे हैं खाम खा। ये खुराक वाली गाड़ियाँ, कोई गाड़ी कोयटे से आ रहे हैं, इसमें 800 लीटर है, वो कहते हैं 500 हमें दे दो, 300 लीटर पे आप जाओ। ये गुजरांवाला ये गाड़ी जा रहा है, ये जो गाड़ी खड़ा है गुजरांवाला जा रहा है। ये अफगानिस्तान से नहीं आ रहे हैं, भारत से नहीं आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं। 2 बजे से रोके हुए हैं, एक गाड़ी भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। अगर जो गाड़ी जाएगा जिसपे 800 लीटर 1000 लीटर 900 लीटर निकाल रहे हैं, 700 800 लीटर निकाल रहे हैं, हम भी इधर से आए हुए हैं, मुसाफिर हैं, सब जलील हो रहे हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। जिले इंतजामिया और कस्टम के आला हुकाम हमारे ऊपर होने वाले जुल्म का नोटिस नहीं ले रहे। मुतालबात पूरे होने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही न्यूज, सखी सरवर। करें कि कितने पेवंद मजीद लगाएं, आखिर कब तक भरम बचाएं, बच्चों को अपने भूखा सुलाएं। महंगाई के बायस तामीराती काम ठप होने से मुल्तान के दिहाड़ीदार मजदूरों का चूल्हा ठंडा होने लगा। कहते हैं फाका कुशी के बायस घरों में नाचाकी बढ़ रही है। हालात की तलखी के लगाए गए जख्मों पर महंगाई और काम ना मिलने का नमक दिहाड़ीदार मजदूरों को निढाल करने के दर पे है। मजदूर कहते हैं कई दिन दिहाड़ी नहीं मिलती, आखिर में गवार और मायूस होकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। 12 दिन हो गए भाईजान, दिहाड़ी नहीं लगी, कारोबार है नहीं, और मकान मालिक किराया मांग रहा है, वो तंग कर रहा है। 6 तरीक को उसको किराया नहीं दिया जा रहा, बिजली का बिल आया भरा पिछले महीने, वो नहीं भरा, इसी वजह से कि दिहाड़ी नहीं लगती, कामकार है नहीं। 2 हफ्ते हो गए काम नहीं लगा, घर दूर है, वहाँ से आते हैं यहाँ अड्डे पे खड़े होने के लिए, यहाँ काम नहीं होता। अब दिहाड़ी देख लो कितनी महंगी है, दिहाड़ी बहुत सस्ती है और महंगाई ज्यादा है। मजदूरों का कहना है कि किराया लगाकर आते हैं, सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं, फिर भी काम नहीं मिलता। घरों में भी तंगदस्ती के बायस तल्ख कलामी होना शुरू हो गई है। 3 हफ्ते हो गए हैं इधर खड़े खड़े, काम नहीं लगता है। घर से आते हैं फिर वापसी चले जाते हैं, कोई भी नहीं लेके जाता है। इधर रोजाना झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं एक दूसरे से। क्या वजह है? काम की ना होने की वजह है। पेट्रोल इतना महंगा है, रश्के वालों से पूछो तो वो कहते हैं 40 रुपए किराया है। लिफ्टें मांग कर यहाँ आते हैं, 1 बजे तक बैठे रहते हैं, काम नहीं लगता। यहाँ लंगर खाने हैं, जाते जाते रोटी खा जाते हैं, बच्चों को भूखा देखकर फिर रोना आता है। एक जाने बढ़ती महंगाई तो दूसरी जाने बेरोजगारी ने मुल्तान के मजदूरों को फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। सारा दिन काम का इंतजार करने के बाद मुल्तान के दिहाड़ीदार मजदूर जब खाली हाथ घर वापस लौटते हैं तो भूख से बिलखते बच्चों को देखकर सिर्फ इतना ही कहते हैं, दिहाड़ी नहीं मिली, रोटी कहाँ से लाऊं। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा मियां मासविन शफीक, मुल्तान। मियांवाली में अब नरम बिस्तर पर भी शहरी सोना भूल जाएं। मुख्तलिफ कंपनियों के मैट्रेस की कीमत में 25% इजाफा हो गया है। 20,000 रुपये वाला मैट्रेस 25,000 रुपये तक जा पहुंचा। महंगाई ने शहरियों से अब नर्म बिस्तर भी छीन लिया। मुख्तलिफ कंपनियों के मैट्रेस की कीमत में 25% इजाफा हो गया। दुकानदार का कहना है कि हर हफ्ते नए निर्ख आ रहे हैं। खरीदारों ने दुकानों का रुख करना छोड़ दिया है। मौजूदा हुकूमत में ये 2 माह में 25% का इजाफा हो चुका है, और जिस तरह अब डॉलर जो कल का रेट है उस हिसाब से अभी कंपनी का राब्ता हुआ है, तो वो कह रहे हैं 10% का मजीद हम कीमतें एक्सटेंड कर सकते हैं जी, और इस वजह से कस्टमर न होने के बराबर है। दुकानदार ने बताया कि 10,000 रुपए वाला मैट्रेस 12,500 रुपए, जबकि 20,000 रुपए वाला मैट्रेस 25,000 रुपए का हो चुका है। पहले 25,000 में भी सेल नहीं है, जब 27,500 का हो जाएगा तो बिल्कुल ही गाहक न होने के बराबर हो गया है और लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। अब तो हमारे पास लोग कहता है कि मैट्रेस हमें 10,000 का मिले, तो 10,000 का तो कंपनी ऐसा कोई मैट्रेस ही नहीं है जो हम परचेज कर सकें, तो इस हिसाब से तो बिजनेसमैन बहुत परेशान है। दुकानदार ने अंदिया दिया है कि मैट्रेस चंद रोज तक 10% मजीद महंगे हो जाएंगे। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अहमदपुर शिरकिया में 2,000 रुपये इमदाद का हसूल भी खवातीन के लिए अजाब बन गया। खवातीन कहती हैं दिन भर धक्के खाना पड़ते हैं, जबकि दुकानदारों के मुताबिक नेट स्पीड कम होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 2,000 रुपए की रकम इमदाद का सिलसिला जारी है। 2,000 रुपए रकम वसूल करने में खवातीन को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से खवातीन का कहना है कि इमदादी रकम वसूल करने में सारा दिन लग जाता है। 2,000 वसूल करने में 2,000 धक्के खाने पड़ते हैं।
ठिके देंदे तक वने ते ठिके देंदे वने कीवें करूं असा कोई खुशी कन पकान से आए खड़े सा ठीक है ना भाई 12-14 मिलता रहे सारे कुता 1 रुपया नहीं मिला हाँ 2000 ते आखड़े से तो कोई ठिके ही नहीं दे तो कोई ठिके ही नहीं दे। मेरे पैसे सब बंद हो गए, बेनजीर वाले कोई मैसेज वगैरह नहीं आ रहा था मेरे पास। दुकानदारों का कहना है कि नेट स्पीड बहुत कम है, जिससे एक शनाख्ती कार्ड की तस्दीक पर ज्यादा वक्त लग जाता है। हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है कि इस सिस्टम को जो है ना बेहतर से बेहतर किया जाए। सिस्टम जो है बहुत सारा जो है सुस्त रवि का शिकार है। 10 मिनट सिस्टम चलता है, आधा घंटा जो है ना सिस्टम ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से औरतें बेचारी बहुत परेशान होती है। आज सुबह से 6 बजे की लाइनें लगी खड़ी हैं, लेकिन सिस्टम सुस्त रवि के होने के शिकार की वजह से जो है ना ये बेचारी औरतें बहुत परेशान हैं। इमदाद से वसूल करने वाली खवातीन जलील ख्वार हो रही हैं। अगर इनका निज़ाम जो है वो बेहतर कर दिया जाए तो हो सकता है ये भी मौजूदा हुकूमत से कुछ मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, रोही अहमद कुशरकिया। आपको अपडेट करें कि मुल्तान के हल्का पीपी 217 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम कहते हैं 4 साल अवाम के दरमियान रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन में शिद्दत पसंदी ला रहे हैं। मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए गहमा गहमी में इजाफा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम अपनी फतह के लिए पुरुमीद। रोही से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इंतखाबी मुहिम बेहतरीन अंदाज में चल रही है, अवाम की तरफ से बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। 9 बजे घर से निकलते हैं और कोई रात के 3 बज जाते हैं। कल तो बल्कि अजानें हो गई थी, तो कैंपेन तो ज़ोरों शोर से चल रही है और बड़ा अच्छा रिस्पांस है लोगों का। इंशाल्लाह 17 जुलाई को लोग जैसे निकलेंगे, वोट डालेंगे। मैं समझता हूँ कि रिजल्ट जो है वो एज एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून इस हल्के से कामयाब होगी इंशाल्लाह। सलमान नईम का कहना था कि 17 जुलाई को शेर की जीत होगी। इंतजामिया की तरफ से मदद मिलने के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो एक झूठे इंसान है, मतलब उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। कोई ऐसी बात नहीं, इस चीज़ का सबूत दें कि कोई डीसी किसी के पास गए हैं, कमिश्नर साहब किसी के पास गए हैं, एसी साहब किसी के पास गए हैं, कोई एक सबूत तो दें। बातें तो मैं भी उन पे इतने इल्जामात लगाऊंगा कि भी वो उसको डिफेंड करते करते उनका इलेक्शन गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं मैं चाहता। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम का मजीद कहना था कि 4 साल से अवाम के दरमियान रहा हूँ, अवाम से मुसलसल राब्ता रहा है। शाह महमूद कुरैशी गलत इल्जामात लगा रहे हैं, किसी से पर्सनल नहीं होना चाहता। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन में शिद्दत पसंदी ला रहे हैं। इलेक्शन काम और खिदमत की बुनियाद पर लड़ना चाहिए। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहम। पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली ना देने की हिदायत। सेक्रेटरी पावर डिवीजन कहते हैं पावर सेक्टर एक जंजाल में फंसा हुआ है, हम अपनी लागत भी पूरी नहीं कर पाते। 80 लाख बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने तजवीज़ दे दी कि मुफ्त यूनिट ख़त्म करके मुलाजमीन को अलाउंस दे दिया जाए। PSC ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन की तजवीज़ तस्लीम कर ली है। आपको बता रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहम। पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली ना देने की हिदायत। सेक्रेटरी पावर डिवीजन कहते हैं पावर सेक्टर एक जंजाल में फंसा हुआ है, हम अपनी लागत भी पूरी नहीं कर पाते। 80 लाख बिजली सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने तजवीज़ दी कि मुफ्त यूनिट ख़त्म करके मुलाजमीन को अलाउंस दे दिया जाए।